Hello students, today I am going to take class based on the previous year JEE Mains questions of quadratic equations. Quadratic equation, which is a topic required for complete mathematics, class 11th as well as class 12 topic. तो class 11th का but required for complete mathematics, चाहे JEE Mains के लिए हो, advanced के लिए हो या any other engineering entrance exam, you will be getting at least one question based on this. Direct भी मिलेगा और indirectly ये सभी topics में required होता है. तो let's begin the session. So yes, we are starting our discussion with a simple question of year 2020 JEE Mains. Quadratic equations की बात करेंगे हम आज लोग. If alpha and beta be two roots of the equation, that equation is given, then the value of. और simple question क्यों कहा वो आप जरूर देख पाएंगे. Alpha and beta are the roots of the equation. This is the equation, so you can definitely very well write sum of root as well as product of roots, and that is coming as 64 minus of b by c by a. So alpha plus beta and alpha beta. Value of this expression has been asked. So सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि we'll take the LCM, right? It is actually what? Alpha raised to power 3 by 8 plus beta raised to power 5 by 8 plus beta raised to power 3 by 8 upon alpha raised to power 5 by 8. Usually एक सवाल आपको quadratic equation का JEE Mains में या किसी भी entrance exam में मिलता ही मिलता है और वो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो पता लगेगा आपको. अल्फा रेज़ टू पावर 5 by 8, बीटा रेज़ टू पावर 5 by 8 is the LCM there. So अल्फा रेज़ टू पावर 3 by 8 plus 5 by 8 plus बीटा रेज़ टू पावर 3 by 8 plus 5 by 8. So it is alpha raised to power 5 plus 3 8 by 8, which is 1 plus beta raised to power 1. So it is coming as alpha plus beta upon alpha beta raised to power 5 by 8. ठीक है, that expression alpha raised to power 5 by 8 beta raised to power 5 by 8 को alpha beta raised to power 5 by 8 दोनों वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है. जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा, बेहद आसान सवाल, लेकिन बार बार एक ही बात कहता हूं कि आसान सवाल तो आपने बोल दिया, गलत नहीं होना चाहिए. 256 रेज़ टू पावर 5 by 8 एंड इसको आप लिख सकते हो 256 2 रेज़ टू पावर देख लीजिए आप 2 रेज़ टू पावर 8 हो रहा है क्या, सो दैट ना लग रहा है बिल्कुल. 2 रेज़ टू पावर 5 32, 2 रेज़ टू पावर 6 64, 2 रेज़ टू पावर 7 128 and 2 रेज़ टू पावर 8. ओके, परफेक्ट. So it is 64 upon 2 raised to power 8 whole raised to power 5 by 8. 64 upon 2 raised to power 5, which is 32, which is nothing but equals to 2. Pretty easy question, but again same thing, गलत मत करिएगा. Each and every exam of engineering entrance you will be getting one question of quadratic. और वैसे भी quadratic आप जानते हो ना, quadratic जो है ये तो हर टॉपिक में कहीं ना कहीं अप्लाई होता है या मैथमेटिक्स में अप्लाई होता है, तो ये बहुत अच्छे ढंग से इसके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, we take an interesting question. Already मैंने सॉल्व किया. Go through the solution. Lambda not equals to 0 be a real value. Alpha and beta are the roots of the equation, as well as alpha and gamma are the roots of the second equation. और आपसे पूछा गया है बीटा गामा अपॉन lambda, what's the value of that? Lambda can be any real value not equals to 0. Alpha and beta are the roots of this equation. Alpha and gamma are the roots of the second equation. आप ऑब्जर्व करोगे कि alpha is a common root for both the equations. ठीक है, second root is beta here, second root is gamma here. ठीक है ना. So first of all, और beta gamma upon lambda आपको required है. First of all, since दोनों इक्वेशन के लिए अल्फा इज ए कॉमन रूट, तो आपने कॉमन रूट सेटिस्फाई किया. तो फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा रखा आपने, एज वेल एज सेकंड इक्वेशन में अल्फा रखा. एलिमिनेशन करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में वी डिड द मल्टीप्लीकेशन बाय 3 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, मल्टीप्लाइड दिस बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टेड, वो आपके सामने है. एंड वी आर गेटिंग अ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड लैम्डा, एंड दैट अल्फा इज कमिंग एज इक्वल्स टू 3 लैम्डा. ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू 3 लैम्डा जब आपको मिला, तो अल्फा इक्वल्स टू 3 लैम्डा को, अल्फा इज ए कॉमन रूट, तो अल्फा इसमें भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और अल्फा इसमें भी सेटिस्फाई कर सकते हैं. तो आई केप्ट द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 3 लैम्डा हियर. ये आपके सामने अल्फा इक्वल्स टू 3 लैम्डा, अल्फा इक्वल्स टू 3 लैम्डा. ठीक है, 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0. लैम्डा कॉमन लेते हैं तो लैम्डा टाइम्स 9 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0.
lambda कैन नॉट बी इक्वल टू 0, वाई गिवन है. सो lambda की जो वैल्यू एप्लीकेबल है दैट इज lambda इक्वल टू 1/9. सो lambda इक्वल टू 1/9 रखने पर वी आर गेटिंग अल्फा इज इक्वल टू 3 इंटू 1/9 विच इज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 1/3. तो अल्फा की वैल्यू 1/3 मिलती है मुझे, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड है बीटा गामा अपॉन लैम्डा. तो अल्फा इक्वल टू 1/3 और लैम्डा इक्वल टू 1/9 मिला. अब इस इक्वेशन में सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लिखा जा सकता है एज वेल एज फॉर द सेकंड इक्वेशन आल्सो दैट आई डिड देयर. अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस गामा एंड अल्फा गामा. ठीक है, सम ऑफ फ्रूट्स की जरूरत ही नहीं लगी. बीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन अल्फा, अल्फा इक्वल टू 1/3 और लैम्डा इक्वल टू 1/9. वैल्यू पुट करने पर बीटा की वैल्यू आ गई आपकी 2/3. सिमिलरली यहां पर भी मैंने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से ही काम किया, दोनों जगह प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से ही काम हो गया हमारा. दैट गामा इज इक्वल टू 9 लैम्डा अपॉन अल्फा. लैम्डा की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ गामा इक्वल टू 3. बीटा गामा अपॉन लैम्डा रिक्वायर्ड था, सभी कुछ फाइंड आउट कर लिया हमने, अल्फा बीटा गामा सभी और लैम्डा सभी कुछ फाइंड आउट किया. पुट दोज वैल्यूज देयर एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट. जो रिजल्ट हमें मिल रहा है दैट रिजल्ट इज 18. 18 इज द रिजल्ट. तो एज पर द क्वेश्चन जैसा गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोसीड किया, बस उतनी सी बात थी. ठीक है, इज दैट ओके? सो वी टेक अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन हो रहा है. ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि भाई एक सवाल लगभग आ ही जाता है और वैसे भी इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस केवल एक सवाल के नहीं पूरी मैथमेटिक्स के लिए होता है. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू. रिलेटिवली आसान सवाल लग रहा है, कुछ कलाकारी दिखने रही है. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. सो सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लिखिए सबसे पहला काम, विच इज गोइंग टू बी 3/7 माइनस ऑफ b by a एंड c by a. ठीक है, now it is alpha upon 1 minus alpha square plus beta upon 1 minus beta square. Take the LCM there. ठीक है, so it is alpha plus beta minus of alpha beta square minus of beta alpha square. सिंपल सॉल्व कर रहे हैं, लगता नहीं इसमें ज्यादा कुछ है क्योंकि केवल अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है. तो ठीक है, प्रोसीड करते हैं जैसा बताया उसके अकॉर्डिंग. 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. सो इट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ, टेक अल्फा बीटा कॉमन, सो इट इज गोइंग टू बी बीटा प्लस अल्फा. ठीक है, इन द डिवीजन इट इज 1 माइनस ऑफ, माइनस कॉमन लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा होल स्क्वायर. ठीक है, तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, अल्फा प्लस बीटा अगर मैं कॉमन लेता हूं तो इट इज कमिंग एज 1 माइनस अल्फा बीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा होल स्क्वायर. देखो वैल्यू प्लेस करना है. सबसे पहली बात देखो आप, हाउ टू कैलकुलेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बिल्कुल बेसिक, जब पढ़ाना चालू करते हैं तभी बताते हैं आपको, बहुत ही एलिमेंट्री स्टेप. तो इट इज गोइंग टू बी 9/49 माइनस माइनस प्लस 4/7 विच इज कमिंग इक्वल्स टू 49 9 प्लस 28 37 अपॉन 49. वैल्यू प्लेस कर रहे हैं. सम ऑफ रूट्स 3/7 1 प्लस 2/7 अल्फा बीटा की वैल्यू 1 माइनस ऑफ 37 अपॉन 49 प्लस अल्फा बीटा होल स्क्वायर दैट इज 4/49. कुछ भी स्पेशल नहीं है, यू नीड टू जस्ट सिंपली कैलकुलेट इट एंड आई होप बड़ी आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे. सिंपल कैलकुलेशन इज देयर, काफी आसान सवाल. ठीक है ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और बड़ा अच्छा सवाल प्रीवियस ईयर जेईई मेंस से.
अलग ढंग से पूछा गया है, एफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ टू इक्वल्स टू जीरो इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इज 3 देन इट्स अदर रूट लाइज इन द इंटरवल। 4 ऑप्शंस आर गिवन और मैंने चारों ऑप्शंस आपके सामने लिखे। बेसिकली वो ये बोल रहा है कि एफ एक्स एक पोलिनोमियल है जिसका एक रूट गिवन है 3, मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट है 3। यू नीड टू फाइंड आउट द सेकंड रूट, उसका सेकंड रूट किस इंटरवल में होगा, दैट मींस यू नीड टू फाइंड आउट द सेकंड रूट और वेरीफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है। ओके, लेट्स सी। सच दैट एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ टू इक्वल्स टू जीरो। ओके, एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल, so that is a x square plus bx plus c quadratic polynomial. So f of minus 1 plus f of 2 equals to 0. So when I say x equals to minus 1, a minus b plus c plus x equals to 2 रखने पर 2b plus c equals to 0. ठीक है? So it is coming as 4a plus a 5a 2b minus b plus b plus 2c equals to 0. ठीक है? Now comes if one of the roots of the equation fx equals to 0, fx equals to 0 is fx is a quadratic polynomial. fx equals to 0 quadratic equation जैसा मैंने कहा, 3 is one of the root, है ना? तो I can write ठीक है, 3 को भी सेटिस्फाई किया आपने। 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू 0, 1 रूट इज 3, तो 3 सेटिस्फाई किया। अब क्या हुआ आपके सामने, अब जो पोजीशन है वो ये पोजीशन है कि एक इक्वेशन आई थी abc में 5a प्लस b प्लस 2c इक्वल्स टू 0 और जो सेकेंड इक्वेशन हमारे सामने आई है 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू 0। सेकेंड रूट के बारे में आपको पता लगाना है, ठीक है ना, कि सेकेंड रूट जो है वो किस इंटरवल में होगा। फर्स्ट रूट जो है वो 3 है। ओके, लेट्स सी। हम बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस ऑफ b बाय a, ठीक है, एन अल्फा बीटा c बाय a। बोले हाँ सर ठीक है, पता है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कोई बड़ी बात तो नहीं। अब हमने कलाकारी करी भाई, ये गिवन रिलेशन था, ठीक है, और 3 एक रूट था, सेटिस्फाई किया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। यहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की बात कर दी। देखो कैसे इंटरेस्टिंग बन जाती चीजें, a अपॉन b अपॉन एंड c अपॉन। व्हेन आई से a अपॉन, इट इज गोइंग टू बी 1 माइनस 6, b अपॉन, व्हेन आई से b अपॉन, तो या तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे या फिर ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो 9 इंटू 2 18 माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड काफी जगह लग जाता है, आपको भी पता है, चाहे डिटरमिनेंट मैट्रिसेस हो या फिर वेक्टर्स हो, 3D हो, काफी लगता है, पूरी मैथ्स में लगता है। इनफैक्ट इट इज 15 माइनस 9, सो a अपॉन माइनस 5 is equals to b upon 13 is equals to c upon 15 minus 9 6। ठीक है, अब देखो फिर कलाकारी, प्रोडक्ट ऑफ रूट से c बाय a, तो मैं यहां से c बाय a लिख सकता हूं। इफ आई टेक दिस, तो c अपॉन a वुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6 बाय 5। बोले हाँ ठीक है, सो अल्फा बीटा इक्वल्स टू c बाय a which is minus of 6 by 5. So, and one of the root is 3. Second root find out करना था, so beta would be equals to minus 2 by 5. है इंटरेस्टिंग। और बीटा जो आया minus 2 by 5, कैलकुलेशन चेक करिएगा, रटी भी नहीं होती। minus 2 by 5 क्लियरली इस इंटरवल में नहीं है, -1 से लेस है, ये इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है। 0 से 1 नो, दिस आल्सो नो, द इंटरवल इज -1। अलग ढंग से पूछने का तरीका, बड़ा अच्छा सवाल, ठीक है ना। सो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस
if lambda be the ratio of quadratic equation given to you, then least value of m for which lambda plus 1 by lambda equals to 1. सिंपल सा सवाल, सिंपल सी लैंग्वेज. इनफैक्ट क्वेश्चन कितना सिंपल है वो तो देखते हैं हम. lambda be the ratio of roots. So if I say one of the root is alpha, second root is beta, alpha और beta दो roots हैं और दोनों का जो रेशियो है that is alpha by beta, let's say it is equals to lambda. So एक रूट हम ये बोल सकते हैं कि one of the root is lambda beta. yes. कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना. अल्फा बीटा तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बीटा, ठीक है. लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू 1, सो इट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 1, और एल्स यू कैन से लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आफ्टर सॉल्विंग दिस. ओके, और इस इक्वेशन के रूट्स हमने कहा दीज आर द टू रूट्स, सो लेट्स राइट सम ऑफ रूट्स एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना. सो सम ऑफ रूट्स इज माइनस ऑफ b by a and product of roots is c by a, ठीक है. So it is actually, if I take beta common, it is lambda plus 1 equals to minus of m minus 4 in the bracket upon 3m square. Here it is lambda times b square is equals to 2 by 3 m square, ठीक है. उसने पूछा लीस्ट वैल्यू ऑफ m की लीस्ट वैल्यू के बारे में बात करना है, और लैम्डा स्क्वायर या लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू. ओके, एक और तरीका हो सकता है जो दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ. लेट्स वर्क ऑन दैट, देखें जरा. या फिर बीटा को एलिमिनेट कर लिया. देखो लैम्डा के टर्म्स में एक इक्वेशन गिवन है आपको यहाँ पे, ठीक है. और दूसरी बात, या लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू 1, और लीस्ट वैल्यू ऑफ m पूछी गई है आपसे. बीटा मैंने अपनी तरफ से लिया है तो क्लियरली बीटा का रिमूवल तो मुझे ही करना है. तो बीटा का रिमूवल करना है तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप बीटा एलिमिनेट करें. बीटा को आपको एलिमिनेट करना होगा तो लैम्डा टाइम्स ये बीटा की वैल्यू, भाई बीटा आपने अपनी तरफ से लिया है, एलिमिनेशन भी आप ही को करना है. सो लैम्डा टाइम्स ये रहा बीटा की वैल्यू, प्लेस करिए m स्क्वायर m माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन, व्हेन आई से स्क्वायर तो 9 टाइम्स m रेज़ टू पावर 4 लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 by 3 m स्क्वायर. इज दैट ओके? m स्क्वायर m माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 9 टाइम्स m रेज़ टू पावर 4 स्क्वायर हुआ पूरा पूरा, ठीक है, बढ़िया. m square would be there, m cannot be equals to 0. So let's see the calculation. m square से ये यहाँ पर कैंसिल हुआ, m square is there, this m square is also getting cancelled, ये m square कैंसिल हुआ यहाँ पर भी, है ना. m cannot be equals to 0. ऑब्वियसली बात है कि m अगर 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, तो ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं. सो ठीक है, ये m रेज़ टू पावर 4 पूरा पूरा कैंसिल हुआ, 3 3 9. अब जो रिमेनिंग आया आपके पास में, आई हैव रिटन हियर, प्लीज देखिएगा, लैम्डा अपॉन, तो मैंने यहां पर क्या किया, इसको लिखा इस स्टेप के बाद, प्लीज लुक फॉर दिस. लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर, लैम्डा प्लस 1 को शिफ्ट किया मैंने राइट हैंड साइड में, तो लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर, इस लैम्डा को इधर, तो लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा रिलेटेड टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड, रिमेनिंग टर्म्स राइट हैंड साइड, m माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 6. भाई बीटा एलिमिनेट करना था तो क्लियर था, एज आई टोल्ड यू कि भाई बीटा मैंने अपनी तरफ से लिया तो हटा दिया उसको, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करते हुए, और सारी स्टेप्स हैं आपके सामने. अब मेरे को अभी एक रिलेशन का यूज करना है जो कि गिवन था क्वेश्चन में. इफ आई सॉल्व क्वाड्रेटिक बना लेता हूं तो क्वाड्रेटिक तो बन जाती है, लेकिन लेट्स सी कैसे हेल्प होगी. अब मैंने क्या कलाकारी करी यहाँ पर, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन किया, राइट हैंड साइड में m माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 6. अब लुक फॉर दिस, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा. मैंने क्या किया है यहां पर, आई हैव रिटन हियर, इधर देख लो आप, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा वुड बी इक्वल्स टू
इसको सेपरेट कर दिया ऐसे, समझ गए क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी स्टेप्स हैं। तो ये आ गया आपका लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा, और इस फॉर्मेट में इसलिए लिखा क्योंकि ये वैल्यू है अवेलेबल मेरे पास, इसकी जरूरत नहीं लगी। लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा, इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस ये 2, 1 प्लस 2 विच इज 3, तो 3 इंटू 6 18, तो m माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 18, m माइनस 4 वुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 18, m इज इक्वल्स टू प्लस 4 प्लस माइनस रूट 3, दो रूट्स आ गए, 4 प्लस 3 रूट 2 और 4 माइनस 3 रूट 2। आपको पूछा लीस्ट वैल्यू कम से कम, तो कम से कम तो नेगेटिव वाली होगी, 4 माइनस 3 रूट 2, दैट्स द प्रूफ। अच्छा सवाल। So now the question is, let alpha and beta are the roots of the equation, gamma and delta be the roots of the second equation, alpha, beta, gamma and delta form a GP, then ratio of 2q plus p upon 2q minus p, that is required here. 4 options are given जो आपके सामने नहीं है फिलहाल। So okay, alpha, beta, gamma, delta forms a GP. तो alpha equals to a, beta equals to ar, gamma equals to ar square and delta equals to ar cube, ठीक है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल्स टू 0, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख दीजिए आप, इट इज गोइंग टू बी 3p। सेकेंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस q इक्वल्स टू 0, गामा एंड डेल्टा 6 एंड q, ठीक है। दिस फॉर्म्स अ जीपी, ओके। और आपको ये रेशो पूछा गया है 2qp प्लस, इसको भी देख लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज दैट रेशो 2q प्लस p अपॉन 2q माइनस p, व्हाट एक्चुअली इज दैट? सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपके पास है अवेलेबल। छोटा सा सवाल है, कैसे प्रोसीड करोगे जरा देख लें। किया आपने ट्राई? अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखिए, a प्लस ए आर इक्वल्स टू 3, a कॉमन लेने पर 1 प्लस आर इक्वल्स टू 3, इन्हीं से काम करना पड़ेगा। अल्फा बीटा दैट इज a स्क्वायर r इज इक्वल्स टू p, सिमिलरली हियर गामा डेल्टा a r स्क्वायर plus AR cube equals to 6, taking AR square common, 1 plus R is equals to 6, ठीक है, बढ़िया। and here gamma delta a square r raised to power 5 equals to q, ठीक है। अभी तो अगर आप ध्यान से देखें और ऑब्जर्वेशन से बात बन जाएगी, इफ यू लुक फॉर दिस एंड दिस, इन दोनों को डिवाइड कर दें आप, तो बहुत आसानी से आपको यहां पर आर स्क्वायर मिल रहा है, और लेट्स से a इंटू 1 प्लस आर को 3 रख दिया आपने, सो इट इज बिकमिंग 3 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और एल्स यू कैन से आर स्क्वायर इक्वल टू 2, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। आर इज द कॉमन रेशियो देयर, ठीक है। 2q प्लस p, ओके, so it is actually 2q, और 2q की जो वैल्यू है दैट इज q की वैल्यू है a स्क्वायर r रेज़ टू पावर 5, बढ़िया, प्लस p a स्क्वायर r, ठीक है, बहुत बढ़िया, 2a स्क्वायर r रेज़ टू, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं कि जिसमें गलत नहीं होना चाहिए, इट इज गोइंग टू बी a स्क्वायर r you have taken common, a स्क्वायर r कॉमन लेने पर 2 टाइम्स r रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर r कॉमन लेने पर a स्क्वायर r 2r रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, जस्ट देखिए आ रहा है समझ में आसानी से ना। दीज आर द 4 टर्म्स इन जीपी, ये 4 टर्म्स लिए हमने, कोई बहुत स्पेशल काम तो नहीं किया। क्वाड्रेटिक के तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा है, और विद द हेल्प ऑफ दैट इजीली वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और पी क्यू की वैल्यू को प्लेस किया। ए स्क्वायर आर कैंसिल हो रहा है सीधे सीधे, और आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अवेलेबल है, तो इट इज गोइंग टू बी 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
2 इंटू 2 का स्क्वायर -1, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 अपॉन 4 इंटू 2 8 -1 7, 9/7 इजीली यू आर गेटिंग द रिजल्ट. ठीक है, आसानी से. नाउ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम JEE Mains. Alpha and beta are the roots of the equation, distinct roots of the equation x square plus 4th root of 3 into x plus the square root of 3 equals to 0. Then value of this is 4th root of 3 and this is square root of 3. पहले तो इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, तो just attempt this. X square plus root 3, this is root 3, this is root 3 का भी रूट है ये 3 raised to power 1/4 माइनस ऑफ. ठीक है, पहले तो इसी को सॉल्व करें, ये स्क्वायर रूट और 4th रूट को सॉल्व करते हैं. तो कैसे कर पाएंगे, तो क्लियरली ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. कैलकुलेशंस इन्वॉल्व में, अच्छी बात है, सीखने को मिलेगा आपको. आई विल बी राइटिंग ऑल द स्टेप्स हियर. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab is equals to 3 raised to power half root 3 into x स्क्वायर. ठीक है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 raised to power 1/4, तो इट इज एक्चुअली रूट 3x स्क्वायर. सो इट इज बिकमिंग, दिस इज x to the power 4, सॉरी, x to the power 4. फाइनल इक्वेशन ये आ रही है x स्क्वायर प्लस x to the power 4 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3x स्क्वायर, और ये है रूट 3x स्क्वायर. सो इट इज बिकमिंग प्लस रूट 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ओके, ठीक है. रूट 3 इज अगेन देयर. तो x रेज टू पावर 4. अच्छा, जो पूछा गया है वो है अल्फा रेज टू पावर 96 इंटू अल्फा रेज टू पावर 92 माइनस, सॉरी, अल्फा रेज टू पावर 96 इन द ब्रैकेट इट इज अल्फा रेज टू पावर 12 -1 प्लस बीटा रेज टू पावर 96 ब्रैकेट में बीटा रेज टू पावर 12 -1. ओके, लेट्स सी और क्या कर सकते हैं. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो तो क्लियर है हमको, डे 1 क्लियर है. ठीक है ना, मतलब ये जो इक्वेशन लिख रहे हो इसकी जगह x की जगह अल्फा भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. अल्फा इज अ रूट, तो विच इज क्लियरली गोइंग टू सेटिस्फाइड. अंडरस्टूड ना. अल्फा एंड बीटा बोथ आर द रूट्स. यू कैन से कि भाई अल्फा सब्स्टिट्यूट किया, बीटा अल्फा कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वही बीटा में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. तो अल्फा आपने रखा, मान लीजिए x की जगह अल्फा रखा आपने, एंड यू आर सॉल्विंग एंड यू वांट टू डिराइव दिस रिजल्ट, या ये रिजल्ट आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए कोशिश जारी है. ओके, लेट्स सी. तो x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 3 x स्क्वायर, और अगेन यहां पर फिर से ऑन स्क्वेयरिंग. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. Here it is alpha raised to power 12 minus 1, और 96 is going to be 12 into 8, ये समझते हैं हम. So on squaring जब देखेंगे तो it is becoming x raised to power 4 whole square plus 3 square plus 2 into 3 into x raised to power 4 is equals to 3x raised to power 4. So it is x raised to power 8 plus, this is 2 into 3 6 minus 3 x raised to power 4 plus 9 equals to 0. राइट, यहां तक ठीक है, समझ में बात आती है आपको. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो मैं लिख सकता हूं अल्फा रेज़ टू पावर 8 प्लस 3 रेज़ टू 3 इंटू अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 0. It is going to be alpha raised to power 8 would be equals to minus of 3 into alpha raised to power 4 minus 9. मेरी रिक्वायरमेंट अल्फा रेज़ टू पावर 12 है, तो अल्फा रेज़ टू पावर 8 इंटू अल्फा रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई किया. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. अल्फा रेज़ टू पावर 12, और अगर अल्फा रेज़ टू पावर 12 फाइंड आउट कर लूंगा तो अल्फा रेज़ टू पावर 96 मुझे समझ में आता है कि भाई अल्फा रेज़ टू पावर 96 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू अल्फा रेज़ टू पावर 8 वैसा. तो मैं अल्फा रेज़ टू पावर 8 पे, सॉरी, आई कैन राइट लाइक अल्फा रेज़ टू पावर 12, क्योंकि अल्फा रेज़ टू पावर 12 में निकालने वाला हूं दिस. ओके, अल्फा रेज़ टू पावर 12, अल्फा रेज़ टू पावर 8 वैल्यू पुट कर दी मैंने फिर से.
तो इट इज बिकमिंग 9, देखो बड़ी अच्छी बात हो गई, माइनस माइनस प्लस 9 अल्फा रेस टू पावर 4 प्लस 27 माइनस अल्फा रेस टू पावर 4, तो अल्फा रेस टू पावर 12 जो आ रहा है वो आ गया 27, ठीक है। तो अल्फा रेस टू पावर 4 आ गया 27, अल्फा रेस टू पावर 12 इज कमिंग 27, सॉरी, अल्फा रेस टू पावर 12 27, तो अल्फा रेस टू पावर 12 रेस टू पावर 8 वुड बी इक्वल टू व्हाट, तो ये अल्फा रेस टू पावर 96 बन जाएगा। तो 27 रेस टू पावर 8 जो अल्फा के लिए स्थिति है वही बीटा के लिए भी, क्योंकि अल्फा और बीटा तो सेम रूट सेम इक्वेशन के रूट्स हैं। तो बीटा रेस टू पावर 12 इज इक्वल टू 27 एंड बीटा रेस टू पावर 12 रेस टू पावर 8 इज इक्वल टू 27 रेस टू पावर 8, जो अल्फा के लिए था वही बीटा के लिए। अब देख लो आप जो रिक्वायर्ड वैल्यू प्लेस करने वाली बात है मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, बट हाँ ये अच्छा सवाल है सीखने समझने के लिए। 27 रेस टू पावर 8 इंटू अल्फा रेस टू पावर 12 माइनस 1 26 प्लस बीटा रेस टू पावर 96, तो इट रिमेन सेम ना, 27 रेस टू पावर 8 इंटू 26, जिस भी फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है आप उस फॉर्मेट में उसका रिजल्ट लिख दीजिए, 27 रेस टू पावर 8 इंटू 26। अगर 3 रेस टू पावर 3 बनाना है तो 3 रेस टू पावर 3 बनाओगे तो 3 रेस टू पावर, देखो 3 क्यूब रेस टू पावर 8 इंटू दिस इज 26, 13 इंटू 2 भी करके लिख सकते हैं। तो जिस फॉर्मेट में आपको रिजल्ट ऑप्शन दिया उस ऑप्शन में मैच कर लीजिए। पॉइंट इज, समझिएगा सवाल अच्छा है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। अल्फा बीटा रूट से इस इक्वेशन के आप पहली स्टेप में एक्स को अल्फा रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक्स ही रखा है और इसको सॉल्व करा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक टर्म को शिफ्ट किया लेफ्ट राइट हैंड साइड में, स्क्वायर किया, यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन अगेन। फिर यहां पर जो रूट 3 वाली टर्म है उसको पहले हमने फोर्थ रूट ऑफ 3 वाली टर्म को शिफ्ट किया था, अब रूट 3 वाली टर्म को शिफ्ट किया राइट में और फिर स्क्वायरिंग किया, तो वी आर गेटिंग दिस। फिर हमने x की जगह अल्फा सब्स्टिट्यूट किया, अल्फा रेस टू पावर 8 हमारे पास आ गया, यहां पर वी वांट अल्फा रेस टू पावर 12, तो अल्फा रेस टू पावर 4 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, गेटिंग इट, अल्फा रेस टू पावर 12 इज इक्वल टू दिस। यहां पर अल्फा रेस टू पावर 8 की वैल्यू एक बार फिर से प्लेस कर दी यहां पर ऐसा, सो मुझे अल्फा रेस टू पावर 12 मिल गया 27, तो बीटा रेस टू पावर 12 भी कितना होगा, तो 27, अल्फा रेस टू पावर 96 कितना होगा, तो भाई 27 रेस टू पावर 8 एंड सेम इज द पोजीशन विद बीटा रेस टू पावर 96, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एंड दैट्स द वैल्यू देयर, ठीक है। जिस भी फॉर्मेट में रिजल्ट रिक्वायर्ड है उस फॉर्मेट में रिजल्ट लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, अंडरस्टूड। नाउ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नाउ जेई मेंस की सवाल है बट काफी आसान। P and Q real values, 2 minus root 3 is the root of the equation, quadratic equation x square plus px plus q equals to 0. Then which of the 4 options is correct there? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। बेहद सिंपल सवाल है एक छोटे से कंसेप्ट के ऊपर, और वो छोटा सा कंसेप्ट ये है कि if 2 minus root 3 is the root of the equation, आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं या जानना चाहिए कि देखो रियल रूट्स में दो टाइप के रूट्स होते हैं, एक होता है रैशनल रूट्स और एक होता है इर्रेशनल रूट्स। रैशनल रूट्स के लिए तो d मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, d मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन जब रैशनल रूट्स की जब बात आती है तो रैशनल में हो गया परफेक्ट स्क्वायर, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पॉजिटिव है d, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इर्रेशनल रूट्स। इर्रेशनल रूट्स में इफ वन ऑफ द रूट इज a प्लस रूट ओवर b, देन अदर रूट इज a माइनस रूट ऑफ b। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अगर इर्रेशनल है तो दूसरा भी इर्रेशनल होगा, ये तो तय बात है। एक रूट अगर a प्लस रूट बी है तो दूसरा रूट a माइनस रूट बी होगा। ठीक वैसे ही जैसे जब हम कहते हैं कि इफ d इज नेगेटिव, ये था d पॉजिटिव बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये बेसिक थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता रहा हूं मैं।
लेकिन अगर हम कहते हैं डी नेगेटिव तब आप जानते हैं, बोले सर इमेजिनरी रूट्स होते हैं, यस इमेजिनरी रूट्स, और इमेजिनरी रूट्स में इफ वन ऑफ द रूट्स ये भी पेयर्स में आते हैं, वन ऑफ द रूट इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा, देन अदर रूट इज क्लियरली अल्फा माइनस आयोटा बीटा, वैसा होता है। तो ठीक है, तो यहां पर 2 माइनस रूट थ्री इज ए रूट, तो 2 माइनस रूट थ्री अगर एक रूट है जो कि एक इरेशनल रूट है, तो क्लियरली द सेकेंड रूट इज 2 प्लस रूट थ्री। तो एक रूट अगर 2 माइनस रूट थ्री है तो दूसरा रूट 2 प्लस रूट थ्री होगा। तो इक्वेशन जब आपको लिखना है तो इक्वेशन तो खैर आपके सामने है यहां पर, यू कैन डेफिनेटली राइट सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लेट्स से दिस अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री जो कि गिवन था, तो बीटा वुड बी इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्यू, and that sum of roots is nothing but 2 minus root 3 plus 2 plus root 3, which is 4 is equals to minus p, or else you can say p equals to minus 4. ठीक है, that sum of roots, root 3 का cancellation 2 plus 2 4, alpha beta 2 minus root 3 into 2 plus root 3 is equals to q, a plus b a minus b, a square minus b square, so q is equals to 1. तो P इक्वल्स टू माइनस 4 एंड Q इक्वल्स टू 1। चार ऑप्शन है, P और Q की वैल्यू अगर पता है तो जस्ट सेटिस्फाई कर लीजिए, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। दिस इज गोइंग टू बी 16, नो, लुक फॉर दिस, Q स्क्वायर 1, दिस इज 1, P की वैल्यू माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 16, तो इट इज गोइंग टू बी 16 plus 1 17, no, it is also not satisfying here. P की वैल्यू, Q की वैल्यू 1, if you keep 1 here तो 1 minus 16 plus 14, okay, ये भी नहीं कर रहा satisfy। P की वैल्यू this is minus 4 रखने पे 16, okay, this one is satisfying, the fourth option is correct। तो बेहद सिंपल से कंसेप्ट के ऊपर, लेकिन बस द ओनली पॉइंट जो मैं बार बार आपसे कहता हूं, और वो ये है कि अगर छोटे छोटे सवालों को, जो आसान सवाल है उनको तो आइडेंटिफाई करो और जरूर सही से सॉल्व करो, ठीक है ना। क्वेश्चन फ्रॉम JEE Mains 2014, if alpha and beta with the roots of the quadratic equation given p not equals to 0 should not be equals to 0, otherwise it would not remain a quadratic, p q r in AP, okay, 1 by alpha plus 1 by beta equals to 4, and modulus of alpha minus beta, difference of the roots is required. 4 options are given and those 4 options are there in front of you. So let's see, alpha and beta are the roots, so alpha plus beta is equals to minus of q by p, and alpha beta is equals to r by p, sum of root as well as product of roots. And when we solve this given relation in alpha and beta, alpha plus beta upon alpha beta is equals to 4, so alpha plus beta is equals to minus of q by p upon r by p is equals to 4, p का हुआ cancellation, so minus of q is equals to 4r, or you can say q is equals to minus 4r। ये तो एक रिलेशन आ गया जो कि बहुत आसानी से कुछ करना नहीं हुआ, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देन कम्स PQR in AP, that means 2q is equals to p plus r, ठीक है, 2q is equals to p plus r, और q की वैल्यू मेरे पास आ गई है माइनस 4r, ठीक है, तो 2 इंटू माइनस 4r is equals to p plus r, or else you can say p is equals to minus 8r minus r minus 9r। एक्चुअल में p और q दोनों को r के टर्म्स में आ गए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज रिक्वायर्ड, that is nothing but root over alpha plus beta whole square, ठीक है ना, a square plus b square plus 2ab minus of 4ab, so alpha plus beta whole square, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, we are having that value minus of q by p का square, that is q square by p square, minus of 4 alpha beta, that is 4 r by p, is equals to root over p square is, ठीक है, this is
क्यू स्क्वायर माइनस 4PR, ठीक है। रिजल्ट इज देयर इन टर्म्स ऑफ दीज वैल्यूज, ओके। तो मैं काम कर सकता हूं यहां पर वैल्यूज पुट करता हूं यहां पर, रूट ओवर क्यू स्क्वायर आर के टर्म्स में निकाला तो 16R स्क्वायर, this is p is minus 9R, so it is becoming plus 9 into 4 36 R square, in the division it is p square, it is 81 R square। R square का तो हो गया कैंसिलेशन, आसानी से बन रहा है, तो कुछ खास नहीं। देखो गिवन रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, वैल्यूज प्लेस करी, क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर, पी क्यू आर इन एपी, सो पी की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ आर। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आर स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल करिएगा एंड इट इज बिकमिंग व्हाट, इट इज बिकमिंग रूट ओवर 36, 81 का स्क्वायर रूट तो हो गया 9, ठीक है, और 36 प्लस 16 52, रूट 52 अपॉन 9, or else you can say 2 root 13 upon 9, but it's pretty easy question, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, सिंपल as per the given information। Again I am telling you simple questions हैं, you must be getting +4 marks there। एक बड़ा लॉजिकल सवाल JEE Mains 2016 का, the sum of all values of x satisfying the equation x square minus 5x plus 5 raised to power x square, that's a quadratic raised to power quadratic and equals to 1, लॉजिकल। देखो राइट हैंड साइड इट इज इक्वल टू 1, अब राइट हैंड साइड में 1 कब कब बन सकता है, क्वाड्रेटिक रेस्ट टू पावर क्वाड्रेटिक है। बोले सर यस यू नीड टू थिंक, क्या अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। पहली बात तो आप ये जानते हैं कि भाई व्हाट डू यू फील इफ 1 रेस्ट टू पावर एनीथिंग, 1 raised to power anything is going to be equals to 1, exactly 1 raised to power anything is going to be equals to 1। ये तो हुआ पहला केस। बोले सर और भी केस बनेंगे क्या, यस सोचिए तब तक आप। तो फर्स्ट केस, केस 1 says this x square minus 5x plus 5 is equals to 1 and this x square plus 4x minus 60 can take any real value। तो ओके ये तो क्लियर सी बात है, तो इसलिए हमें इस पे ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर वैल्यू इट टेक्स इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली 1। सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, बट यस इट्स ए लॉजिकल। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x equals to 1 and x equals to 4, these are the two values of x, ठीक है। ये हुई एक बात। नाउ द सेकेंड इज, यस सोचा कुछ आपने, सेकेंड इज ये भी तो हो सकता है, हाँ रेस्ट टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, यस परफेक्ट। अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि a रेस्ट टू पावर 0 इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1, so this x square plus 4x minus 60 should be equals to 0। उसने sum of all values पूछा है, ठीक है। x square minus x square plus 4x minus 60 equals to 0। तो उस केस में दिस इज गोइंग टू बी 60 कब बनेगा, जरा फैक्टराइज करके देखो आप। 12 और 5 नहीं जमेगा, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज जहां पर ये 60 बन रहा है। कैन यू जस्ट थिंक ओवर दैट, दिस इज केस नंबर 2। हाँ केस नंबर 2 में एक बात और होना चाहिए कि इफ दिस ऑल्सो बिकम्स 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, अगर ये 0 बन जाता है तब ये 0 रेस्ट टू पावर 0 का फॉर्म ले लेगा और वो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, क्या ये 0 हो सकता है कभी भी? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, इसको ऑब्जर्व करें, दैट इज एक्चुअली इसका डी अगर आप चेक कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो या ये 0 कब बन रहा है? लेट्स से इफ यू जस्ट चेक द डी ऑफ दिस, मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ गए? 0 रेज़ टू पावर 0 इज गोइंग टू बी एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, दिस
अगर ये अदरवाइज ये जो भी रहेगा रेस्ट टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी. तो डी इज कमिंग पॉजिटिव, तो रूट्स तो इसके जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x. आर यू गोइंग टू गेट एनीथिंग देयर? जरा ये भी विचार करिए. तीसरा केस, यस तीसरा भी होगा, ये आपको सोचना है. थर्ड केस इज, हाँ छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी. नेगेटिव नंबर -1 और -1 की इवन पावर, ये भी तो 1 बनेगा, इसे भी सोचिए. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू -1. डू टेक केयर वॉट एवर रूट्स यू आर गेटिंग, आप करना है अभी आपको. ये भी ट्राई करिए जो मैं आपको बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और इवन पावर. डू टेक केयर. ये तो बाय द वे साफ साफ दिख रहा है कि 2 and 3 आर द रूट्स दे, ज्यादा सोचना नहीं पड़ा आपको. प्लीज वेरीफाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 व्हाट वैल्यू दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज टेकिंग फॉर 2 and 3. चेक करिए, दिस मस्ट बी इवन पावर. सो दैट्स ए हिंट फॉर यू, जस्ट करिए, अटेम्प्ट करिए. तो यस सॉल्व किया आपने. सेकंड केस मैंने यहां पर कंप्लीट सॉल्व कर लिया आपको, जस्ट चेक करिए. सेकंड केस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. ठीक है ना, दिस पावर इज बिकमिंग 0. इजीली फैक्टराइज हो रहा है ये 10 और 6 के टर्म्स में, तो x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू -10. ठीक है. छोटी सी बात जो मैंने आपको यहां पे मेंशन करी वो ये कि d ऑफ दिस इज कमिंग पॉजिटिव, दैट मींस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. हमें ये ऑब्जर्व करना है, जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं वो ये कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं जाना चाहिए. मतलब 0 रेज़ टू पावर 0 इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 1 देयर. हम ये चेक कर लेते हैं, d पॉजिटिव आ गया, दैट इज ओके. 6 और -10, 6 और -10 के करस्पॉन्डिंग ये एक्सप्रेशन 0 तो नहीं बन रहा है. दैट वी नीड टू चेक कि इफ आई कीप 6, तो अगर मैं 6 रखता हूं यहां पर तो 8x इक्वल्स टू 6 एंड 8x इक्वल्स टू -10. कहीं ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 0 तो नहीं बन रहा है. दैट इज माई पॉइंट. तो 6 रखने पे 36 प्लस 5 41 माइनस नो नॉट बिकमिंग 0 एंड फॉर -10 क्लियरली नॉट इक्वल्स टू 0. सो कोई दिक्कत नहीं है, 6 और -10 दोनों वैलिड रिजल्ट से. ठीक है, और 6 और -10 पे दिस इज नॉट बिकमिंग 0 फॉर 6 एंड -10. सो दिस टू आर गोइंग टू बी देयर इन द रिजल्ट. थर्ड केस, इंटरेस्टिंग वन, इवन वैल्यू -1. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज टेकिंग -1 और जो पावर है दैट शुड बी इवन ऑल्सो. सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज कमिंग -1. रिपीट कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू -1 और -1 की इवन पावर विल बिकम 1. तो वो इवन पावर जो होगी वो 1 बनेगी. तो सबसे पहली बात तो ये -1 कब बन रहा है, तो 2 और 3 के लिए परफेक्ट. दूसरी बात, हमें बहुत जरूरी है कि x की जो भी वैल्यू आई है 2 और 3 उसके लिए ये इवन होना चाहिए, तभी -1 की इवन पावर 1 बनेगा. तो ठीक है, फॉर 2 हमने चेक किया, ये आपके सामने. फॉर x इक्वल टू 2 इट इज कमिंग इवन, बट x इक्वल टू 3 इट इज नॉट कमिंग इवन, इट इज बिकमिंग ऑड. सो वी रिजेक्टेड दिस, वी रिजेक्टेड x इक्वल टू 3. लॉजिकल क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि काफी सोचने को मजबूर किया इसने. ठीक है, नाउ द वैल्यूज आर 1 4 6 -10 एंड 2. 3 is rejected. So इन सबका सम लिया and that sum is clearly coming equals to 3. बड़ा अच्छा सवाल. ठीक है, so yes you need to consider these 3 cases. तीनों केसेस आपको कंसिडर करने पड़ेंगे. And we also checked, again I am telling you कि 0 raised to power 0 ना बन जाए, तो 6 और -10 पे पावर 0 नहीं बन रही है. That we verified. ठीक है, then it's perfect. Result is 3, right? So question from Men's, if alpha and beta are the roots of the equation 2x into 2x plus 1 equals to 1, then beta equals to, these are the 4 options given to you. Let's see.
अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक लिखी मैंने, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/4 विच इज इक्वल टू माइनस हाफ. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखता हूं तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4. पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा गया व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बीटा, और किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ अल्फा. बीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में रिक्वायर्ड है, सेकंड रूट रिक्वायर्ड है फर्स्ट रूट के टर्म में. तो ठीक है, बीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस अल्फा, और यहां पर बीटा देखोगे तो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4 अल्फा. इट इज ऑल्सो क्लियर दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, तो अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करेंगे, ये भी क्लियर है. 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0. दैट इज ऑल्सो अंडरस्टूड. बीटा इज दिस. 4 ऑप्शन हैं आपके सामने. वन ऑफ द ऑप्शन इज यस वी नीड टू टेक ऑप्शन. सम ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर जहां पर आपको ऑप्शंस लेके काम करना होता है. तो इफ आई टेक द ऑप्शंस, जैसे एक सिंपल सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे 2 अल्फा स्क्वायर, यहां पर अगर मैं लिखता हूं कि इफ 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस हाफ इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड किया तो 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस 1/2. बीटा क्या है जबकि माइनस 1/2 माइनस अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर इज माइनस अल्फा प्लस हाफ. नो, इट्स नॉट सेटिस्फाइड, दिस वन इज रिजेक्टेड डायरेक्टली. ठीक है, इफ आई टेक द ऑप्शन इज 2 अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा. 2 अल्फा स्क्वायर अभी अभी मैंने बात करी आपसे, माइनस अल्फा प्लस हाफ माइनस 2 अल्फा, और एल्स यू कैन से माइनस 3 अल्फा प्लस हाफ. नो, नॉट मैचिंग. ठीक है, लुक फॉर दिस 2 अल्फा into alpha plus 1, that is equals to 2 alpha square plus 2 alpha, which is 2 alpha square is what, minus alpha plus half plus 2 alpha, or else you can say alpha plus 1/2. बीटा क्या एक्चुअली, बीटा इज माइनस 1/2 माइनस अल्फा, तो ये तो आ गया आपका माइनस बीटा. हो गया हमारा काम. माइनस ऑफ 2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इज द रिजल्ट देयर. तो ये वो क्वेश्चन था जहां पे हमने ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर लिया. भाई जितना हम कर सकते थे, सम ऑफ रूट लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा, और अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन, तो टुक द ऑप्शंस एंड सॉल्व. तो ठीक है, टुडे वाज द डिस्कशन डे फॉर द quadratic equation, important topic as I told you for complete mathematics, and we discussed the questions of previous year JEE Mains. Do go through the class again, do share this class with all of your friends, it's available freely. So thank you very much. I just conclude here. Bye bye.